Good morning, guys. So, actually, we were doing. Today, we are gonna do the chapter solutions. So, let's just start with me. So, in earlier video, we have seen already the types of solution like dilute solution, concentrated, saturated, unsaturated. And this type of solutions was based on the type of based on concentration and based on physical state. Also, we have seen the solutions as there are solid solutions, liquid solutions, and the gaseous solutions. Like solid solution, if we take the solvent as solid, so if the solute is gas, so example can be H2 in PD. If the liquid is then the amalgam of Hg with PD, with Na. And if it's a solid, so we can dissolve the copper where dissolved in gold, right? And liquid solution, so we have solvent liquid, so we can add the solid gas, so it could be CO2 in the water, liquid in liquid, so ethanol dissolved in water. And if it's solid, so salt in water. And if gaseous solution, so solvent would be gas, so solute can be gas, so mixture of O2 and N2, liquid, so chloroform with N2, and solid, so camphor in N2. So these are all the examples of the solid, liquid, and the gas solutions. So now let's move to that type of solution is over. So expressing the concentration of solutions. So how can we express the concentration? So it can be expressed as by V by V, W by W, W by V. ppm means number of parts of the component by total number of parts of all the components of solution into 100. Mole fraction, number of moles of the component by the total number of moles of all the components. Molarity, number of moles of solute by volume of solution in liter. Molality, moles of solute by mass of solvent in kg. And normality, so it is gram equivalent of solute by volume of solution in liter. And what is actually gram equivalent? So mass of solute by equivalent weight. Gram equivalent is mass of solute by equivalent weight. So by this we can express the concentration of the solutions. Now let's look on the abnormal molar mass. So for abnormal molar mass we have modification of expressions of colligative properties. Okay, it's can be first we have to go through the colligative properties. So colligative properties. So first is relative lowering of vapor pressure means RLVP. So it is atmospheric pressure, and in the second case we have the with solute the solution is present, and in the first it was pure. So when we find the RLVP of this, so it is the expression is P naught A minus PA by P naught A is equals to XB means mole fraction of the solute, where P naught and P is vapor of pure solvent and solution. So this is a vapor of pure solvent and solution. In terms of molecular weight of solute, so MB is equals to WB MA means like moles of solute by the molar mass of like that, and WA into P naught A minus PA by P naught A. ठीक है, तो क्योंकि हमारा XB क्या होता है, XB होता है हमारा मोल फ्रैक्शन में टोटल मोल के हिसाब से देखते हैं, तो उसका वेट ले लेंगे, सॉरी हाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉम्पोनेंट ले लेंगे उसके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉम्पोनेंट ऐसे, तो हमारा उससे फाइनली जो आ जाएगा वो आ जाएगा MB इज इक्वल टू WB इंटू MA बाई WA इंटू P नॉट A माइनस PA बाय P नॉट A. ठीक है, अब ये हमारा हो गया RLVP के लिए. अब हम लोग देखते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. तो जब हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो डेल्टा TB जो होता है वो हमारा KB इंटू M के इक्वल होता है. ठीक है, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M. तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 बाय MB इंटू WA. ठीक है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M. और डेल्टा TB को हम लोग क्या देख सकते हैं, KB इंटू हमारा क्या होता है M जो होता है मोलैलिटी होता है. मोलैलिटी कैसे लिखते हैं हम लोग, मास ऑफ द सोल्यूट सॉरी स्मॉल m होता है वो हमारा मोलैलिटी होता है, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg. ठीक है, तो अब मोल्स को कैसे लिखते हैं, तो WB बाय MB
इंटू WA हो जाएगा इंटू 1000, ठीक है। तो ये सब हम लिखते हैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का। KB इज़ अ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, जहाँ पे हमारा KB क्या है, हमारा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट है। अब ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं, उसके पहले डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट भी बॉइलिंग पॉइंट वाले जैसे ही होता है। तो उसमें हमारा डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB M होता था, M मोलैलिटी होता था, तो KB इंटू WB बाय MB इंटू WA इंटू 1000, ठीक है। तो ये हमारा डेल्टा TB हो जाता था। RLV में हमारा P0A माइनस PA बाय P0A इज इक्वल्स टू XB। और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF M, वेयर KF इज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। वहाँ पे KF क्या हमारा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, और डेल्टा TF होता है KF इंटू WB WA इंटू MP इंटू 1000। तो इसका भी बस सेम ही है, बस KB की जगह हमारा KF आ जाता है किसमें, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट में। और यहाँ पे फ्रीजिंग KF है क्या, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, और वहाँ पे हमारा KB क्या था, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। तो ये हमारे 3 हो गए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अब चौथी है हमारी ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पाई इज इक्वल टू CRT, ठीक है, पाई इज इक्वल टू CRT। तो कंसनट्रेशन है तो उसको जगह लिखेंगे हम लोग उसके मोल्स बाय V। तो पाई इज इक्वल्स टू WB बाय V, WBRT बाय VMB, और MB को हम लोग क्या दे सकते हैं फिर, WBRT बाय V पाई। वहाँ पे हमारा पाई ही हमारा क्या ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो हमारे चारों के चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। वेपर प्रेशर का हमें निकालना है लिक्विड सॉल्यूशंस का, तो हम लोग रॉल्स लॉ देखते हैं। तो रॉल्स लॉ में क्या है कि फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो अगर एक कोई सॉल्यूशन है वोलेटाइल लिक्विड्स का, तो जो पार्शियल प्रेशर होगा हर एक कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन का, तो उसका जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रेजेंट इन सॉल्यूशन के, ठीक है, उसकी मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हमारा P टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P01 इंटू X1 प्लस P02 X2। ये माना क्या है, रॉल्स लॉ, कि फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ इट्स कंपोनेंट, ठीक है। अब उस रॉल्स लॉ में आइडियल सॉल्यूशन आता है, तो आइडियल सॉल्यूशन तो हमारा ओबे करेगा रॉल्स लॉ को। तो डेल्टा H मिक्स इज इक्वल टू 0, डेल्टा V मिक्स इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल बेंजीन और टॉल्यूइन को मिला दिया तो आइडियल सॉल्यूशन है, रॉल्स लॉ दिखाएगा, मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डेल्टा H मिक्स इज इक्वल 0, डेल्टा V इज इक्वल 0। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें मतलब क्या हमारा पॉजिटिव डिविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हमारा क्योंकि पॉजिटिव डिविएशन ये हमारा ओबे नहीं करता रॉल्स लॉ को, ठीक है। तो डेल्टा H मिक्स हमारा ग्रेटर देन 0 और डेल्टा V मिक्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0। फॉर एग्जांपल वाटर विथ मिथेनॉल, तो वाटर विथ मिथेनॉल में मिक्स कर दिया तो हमारा पॉजिटिव डिविएशन वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन बन जाएगा। अब नेगेटिव डिविएशन की बात करते हैं तो ये हमारा रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करता, तो डेल्टा H मिक्स लेस देन 0, डेल्टा V मिक्स लेस देन 0। और हमारा फॉर एग्जांपल एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, ठीक है, वो एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। तो ये हमारा वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्यूशन के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देख लिया, टाइप ऑफ सॉल्यूशन देख लिया, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन देख लिया। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा हेनरीज लॉ, ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी जो हम लोग देखते हैं उसमें हमारा क्या होता है कि सॉलिड एंड लिक्विड, मीन्स हमारा कोई लिक्विड है उसमें सॉलिड डाल दिया, हमने शुगर, अगर हमें वो शिकंजी पीने का मन हो रहा है तो क्या करेंगे, हम शुगर डाल देंगे, किस में, पानी में। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड। सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, इफ प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, अगर प्रोसेस को एनर्जी चाहिए होती है तो डेल्टा H कैलोरी जो होगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि एंडोथर्मिक है तो हमारा पॉजिटिव आएगा, तो ऑब्वियसली हम लोग उसे ज़्यादा लेंगे 0 से। सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे जैसे हम लोग का टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी हमारी।
तो एंडोथर्मिक के लिए जो हमने बात की तो उसमें तो हमारा क्या है कि प्रोसेस में डेल्टा एच कैलोरी गिर से 0 है और उससे तो हमारी सॉलिबिलिटी जो है टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो सॉलिबिलिटी बढ़ती जाएगी। पर अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो तो फिर ये होगा हमारा कि डेल्टा एच कैलोरीज होगा मतलब लेस देन 0 होगा और सॉलिबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। और यहाँ पे हमारी जो सॉलिबिलिटी है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे कम होती जाएगी। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड बिकॉज सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। तो ऐसे ही हमारा कोई इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऐसा कुछ खास नहीं पड़ता है। सॉलिबिलिटी तो क्या होता है गैस या लिक्विड, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सॉलिबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो हमारा गैस या लिक्विड, तो लिक्विड जो है उसमें हमने गैस डालनी है, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा सॉलिबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे सॉलिबिलिटी कम होती जाएगी। हमने कोई गैस डिसॉल्व की है क्योंकि गैस एस्केप कर जाएगी, राइट। ऐसे तो है नहीं कि ओह टेम्परेचर बढ़ रहा है अब हमें और आना चाहिए, नहीं, गैस एस्केप कर जाएगी। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखते हैं तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग प्रेशर। अब जो गैस से लिक्विड है वहाँ पे एक्चुअली इफेक्ट ऑफ प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी क्या कहते हैं सॉलिबिलिटी क्या होगी हमारी इंक्रीज होगी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नॉर्मल कंडीशन और मोलर गैस मॉलिक्यूल्स आर सॉल्युबल, मोर गैस मॉलिक्यूल्स आर सॉल्युबल एट हाई प्रेशर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं किसको हेनरीज लॉ को। तो हेनरीज लॉ को देखते हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबाउट द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन। तो हम लोग ये हेनरीज लॉ में देखते हैं कि हमारा सॉल्युबिलिटी होता है ऑफ ए गैस इन लिक्विड, solubility of a gas in liquid, solubility of gas in liquid वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन। और हमारा जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होता है वो सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। P is equals to KHX। KH हमारा क्या होता है हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। तो हेनरीज लॉ की बात करते हैं हमारी जो उसकी सॉलिबिलिटी है वो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे वो बढ़ती जाएगी और वैसे ही मोल फ्रैक्शन के लिए भी है। तो मतलब कि हमारा एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के। तो KH हमारा हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट होता है तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा PH इज इक्वल टू KHX। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है कि higher the value of KH at a particular pressure, lower is the solubility of gas in liquid. जितना ज़्यादा हमारा वैल्यू होगा KH का किसी पर्टिकुलर प्रेशर पे उतना ही उस गैस की सॉलिबिलिटी कम होगी लिक्विड में। ये हमने हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग बोला। एप्लीकेशन देखते तो होता है इन डीप सी डाइविंग और फॉर क्लाइंबर्स, तो इसका यूज होता है हेनरीज लॉ का। It is applicable only when the pressure of the gas is not too high and temperature is too low. जब प्रेशर ज़्यादा हाई ना हो टेम्परेचर ज़्यादा कम ना हो और द गैस should not undergo any chemical change, गैस कोई केमिकल चेंज में नहीं जानी चाहिए। तो ये हो गया हमारा। और लास्ट टॉपिक हमारा बचा है वो है हमारा एबनॉर्मल मोलर मास। तो मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशंस ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। हमने अभी 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ देखी थी, अब उसका मॉडिफिकेशंस पढ़ना है। तो हो जाएगा क्या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो डेल्टा P बाय P0 इज इक्वल्स टू IX सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है डेल्टा TB इज इक्वल्स टू IKBM, प्रेशर फ्रीजिंग पॉइंट IKFM, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल्स टू ICRT। तो एक्चुअली ये I क्या है, तो I है वेंट हॉफ फैक्टर। तो वेंट हॉफ फैक्टर क्या होता है नॉर्मल मोलर मास बाय ऑब्जर्व्ड और एबनॉर्मल मोलर मास।
In case of association, observe molar mass being more than the normal, the factor I has value less than 1. तो अगर हमारी एसोसिएशन होगी तो जो हमारा ऑब्जर्व मोलर मास होगा फिर हमारा क्या कहते हैं वो ज़्यादा होगा किसी नॉर्मल से, तो फैक्टर आई हैज़ वैल्यू लेस देन 1. और अगर हम केस डिसोसिएशन की करते हैं तो हमारा वहाँ पे ऑब्जर्व मोलर मास कम होगा क्योंकि वाटर फैक्टर इज मोर देन 1 बिकॉज ऑब्जर्व मोलर मास हैज लेसर वैल्यू, तो आई ग्रेटर देन 1 होगा. और तुम्हारा आई होता क्या, नॉर्मल मोलर मास व ऑब्जर्व मोलर मास. This was all about solutions. Thank you.